السلام علیکم، میں ہوں شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں گوگل ایڈ سنس کی سروس کیسے استعمال کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، میں جٹ کے انداز میں بات کروں گا، جلدی بات کروں گا تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، زیادہ کوئی علمی باتیں نہیں کروں گا۔ شروع کرتا ہوں۔ گوگل ایڈسن اصل میں گوگل کی جانب سے انٹرنیٹ پر اشتہارات کو نشر کرنے کی ایک سروس ہے۔ یہ پروگرام اصل میں ویب سائٹ کے پبلشر کے لیے وضع کیا گیا تھا، اور جو تصاویر اور ویڈیو کی شکل میں گوگل کی جانب سے جو فراہم کردہ اشتہارات ہیں اس کو اپنے ویب پیج پر لگا سکتے ہیں۔ بلاگر لگا سکتے ہیں، ویب سائٹ والے لگا سکتے ہیں، کوئی شاپنگ والے لگا سکتے ہیں، یعنی کہ تمام انٹرنیٹ کی ویب سائٹ گوگل کے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں، پیسے کما سکتی ہیں۔ اب تو بہت زیادہ ہو گیا، ویڈیو میں بھی آپ کو، اگر آپ ویڈیو وغیرہ بنانے کے شوقین ہیں تو وہاں سے بھی بڑے اچھے آپ پیسے کما سکتے ہیں گوگل ایڈسنس کی جانب سے۔ تمام اشتہارات جو ہیں وہ گوگل خود ترتیب دیتا ہے، ان کے کوڈ آپ کو وہ مہیا کرتا ہے، اور گوگل کی ایما پر یہ تمام اشتہارات کوڈ جو ایک ہوتا ہے وہ خود بخود تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تبدیل کیسے ہوتے رہتے ہیں؟ فرض کریں میں کہیں سے سرچ کر کے کوئی چیز آیا ہوں، کوئی مثال کے طور پر میں نے سرچ کیا ہے موبائل کو، میں موبائل کو سرچ کر کے جب کسی اور کی ویب سائٹ پر جاؤں گا، ادھر اگر گوگل کے اشتہار لگے ہوں گے تو میرے بالکل سامنے جو اشتہارات میں چیزیں آئیں گی وہ موبائل الیکٹرانک سے متعلق ہوں گی، کیونکہ گوگل مجھے پڑھ لے گا کہ یہ اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے، اور دلچسپی کے اشتہارات وہ اس ویب سائٹ پر دکھائے گا۔ اسی طرح ہی اگر فرض کریں میں اس اشتہارات پر کلک کروں گا تو جو اس کی ویب سائٹ ہوگی اس کو اس اشتہارات کے کلک کرنے پر پیسے ملیں گے۔ وہ پیسے کتنے ہیں؟ وہ پینی کی شکل میں ہوتی ہیں، ایسا ایسا وہ ڈالر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اگر زیادہ آپ محنت کریں گے۔ محنت کیسے کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاتا ہوں۔ تو یہ تو میں آپ کو تھوڑا چھوٹا سا بتا دیا۔ یہ گوگل ایڈسنس جو پروگرام ہے یہ بالکل فری ہے، اس میں ہر کوئی بندہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے۔ پہلے یہ اردو کے لیے نہیں تھا، اردو یونیکوڈ کے لیے، اب انہوں نے اردو یونیکوڈ کے لیے بھی اس کو کر دیا ہے، یعنی کہ اردو یونیکوڈ کی ویب سائٹس اور بلاگر بھی اس کو اپنے بلاگ پر لگا سکتے ہیں۔ اس کے مختلف پروگرام ہیں، اشتہارات وغیرہ ہیں، ایڈ یونٹ وغیرہ ہیں، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ کیسے کرنے ہیں کیسے نہیں کرنے۔ تو اگر آپ زیادہ محنت کریں گے تو اس سے آپ 20-25 ہزار روپے ماہانہ کی مفت کی آمدنی کما سکتے ہیں۔ مفت سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو گوگل مفت میں دے دے گا، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کرنے کے لیے چولے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اشتہارات پہ خود کلک کرنے سے گوگل آپ کے اشتہارات بین کر دے گا، آپ کا اکاؤنٹ ختم کر دے گا۔ کوئی ایسا سافٹ ویئر یوز کرنے سے جس سے آپ کی ٹریفک میں آمدنی ہو، ویب سائٹ کی ٹریفک میں آمدنی ہو، گوگل فوری طور پہ وہ اکاؤنٹ بلاک کر دے گا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ ایسے سافٹ ویئر استعمال کرتے تھے وہ کلک کرنے کے لیے، اپنی ویب سائٹ کی ٹریفک بڑھانے کے لیے، تو گوگل اس ٹائم اتنا فعال نہیں تھا، گوگل کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے، وہ فوراً اکاؤنٹ کو بلاک کر دیتا ہے۔ اب میں آتا ہوں گوگل ایڈسنس کی طرف کے کیسے بناتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس اس کے لیے جی میل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ جی میل رکھتے ہیں تو سب سے بہتر ہے جی میل رکھنا۔ جی میل کا اپنا اکاؤنٹ کھولیے۔ اگر آپ بلاگر ہیں، پرانے بلاگر ہیں، اور آپ کا بلاگ سپاٹ پر بنا ہوا ہے تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے بلاگ پر جائیے، آپ اپنے بلاگ کے ڈیش بورڈ پر جائیے، ڈیش بورڈ پر لیفٹ سائڈ پر ارننگ لکھا ہوگا، دیکھیے یہ ارننگ آپ کو لکھنا ہے، اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ بالکل سامنے آپ کے گوگل ایڈسنس کا آ جائے گا۔ اس کو آپ نے سائن اپ کرنا ہے فار ایڈسنس۔ سائن اپ سے مراد یہ ہے کہ آپ آلریڈی جی میل سے لاگ ان ہیں۔
साइन अप जब करेंगे खुद बखुद वो आपको उठा लेगा और आपको इश्तिहारात वो देने शुरू कर देगा। मगर बात ये है, इश्तिहारात के कोड वो आपको खुद बखुद मुहैया करेगा, जो आप अपनी साइड बार में फ्रंट पर लगा सकते हैं। इसमें साइड बार में सेटिंग में जाकर आप लेआउट में जाकर इसको आप बड़े आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये लेआउट में जाकर, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। ठीक है, हम आ गए अर्निंग की तरफ। आप आराम से इसको साइन अप करके इसमें एंटर हो सकते हैं। वेब यानी कि ब्लॉग स्पॉट पर कोई बड़ा मसला नहीं है गूगल एडसेंस का अकाउंट एक्टिवेट करना। ये तो हो गया ब्लॉग स्पॉट का। जो सेल्फ होस्टेड वेबसाइट हैं, जैसे वर्डप्रेस की है, ब्लॉग हैं या वेबसाइट्स वगैरह हैं उर्दू की, उसके लिए मैं आपको बताता चलूं। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़े। ब्लॉग स्पॉट पर आपकी मेहनत। इसमें एक चीज़ और मैं बताता चला जाऊं कि आपके ब्लॉग को शुरू किए हुए 3 महीने ज़रूर हुए होने चाहिए। नए ब्लॉग को 3 महीने से पहले गूगल एडसेंस आपको अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं देगा, उनका कवानीन है। 3 महीने भी एक्टिव आपकी वेबसाइट या ब्लॉग होना चाहिए, ब्लॉग स्पॉट पर या किसी भी जगह पर, या किसी भी आप सेल्फ होस्टेड पर आपकी वेबसाइट है। 3 महीने ज़रूरी हैं। ठीक है जी, ये बस याद रखिएगा। आपका अगर पुराना ब्लॉग है, बड़े आसानी से ये अर्निंग पर क्लिक करके आप इसको बना सकते हैं। ये ब्लॉग स्पॉट का मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सेल्फ होस्टेड की तरफ। सेल्फ होस्टेड से मुराद जो अपनी वेबसाइट, अपनी डोमेन ख़रीदी होती है उस पर। मिसाल के तौर पर मेरी अपनी एक ज़ाती डोमेन है snaji.com। उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले मुझे करना क्या होगा। ये एडसेंस में जाने से पहले अपनी वेबसाइट को पहले मैंने उसके मयार के मुताबिक बनाना है, ताकि मुझे गूगल अप्रूव करे एडसेंस के लिए। ठीक है, उसके मयार के मुताबिक बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा गूगल वेब मास्टर टूल्स में। वेब मास्टर टूल्स आप बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं। वेब मास्टर को आप सर्च करें, वेब मास्टर टूल, गूगल वेब मास्टर टूल अगर आप लिखेंगे तो आपको वो गूगल वेब मास्टर टूल में पहुंचा देगा। यहां से आप क्लिक करके साइन इन, आप जीमेल के साथ हुए हैं, जीमेल के साथ होकर आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे गूगल वेब मास्टर टूल में। यहां आप ने अपना सर्च इंजन में, गूगल के जो सर्च इंजन में है, वो अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। आपकी वेबसाइट ऑलरेडी सर्च इंजन में मौजूद, जब आप ऑन करते हैं, नहीं बनाते हैं, सर्च इंजन में चली जाती है, मगर आपने खुद उसको ऐड करना है अगर ज़्यादा बेहतर आपने रिजल्ट लेना है तो। ये लेफ्ट साइड पर आप जाएंगे, डेस्कटॉप लिखा हुआ है, डेस्कटॉप पर जाएंगे तो उसके बिल्कुल सामने आएंगे, ऐड ए प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। ऐड ए प्रॉपर्टी पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आप अपने ऐड ए प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक नई ऐड ए प्रॉपर्टी करें। ये मेरी तीनों प्रॉपर्टी हैं इधर ऑलरेडी इसके अंदर ऐड हैं, मैंने ऐड की हुई हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन मेरी तीनों की हुई है। अब वेरिफिकेशन कोड कहां से लेने हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यहां मोबाइल के लिए चाहिए तो इसमें भी आपने ऐड ए प्रॉपर्टी करना है। डेस्कटॉप के लिए चाहिए, इसमें भी ऐड ए प्रॉपर्टी करना है। मैं एक डोमेन को लेता हूं, इसमें मेरी सारी वेरीफाई हुआ है ये सारा। ठीक है, ये ऐड ए ऑनर, अगर दूसरा ऑनर करना है ये इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई मेथड, वेरीफाई यूजिंग ए डिफरेंट मेथड। इसमें आपने मेथड यूज करना है HTML फाइल अपलोड अपने रूट डायरेक्टरी में करनी है तो इसको क्लिक करके कोड ले लेने हैं। अगर आप चाहते हैं डोमेन नेम प्रोवाइडर से आपने कोड लेने हैं तो वहां से जाकर, मेरा GoDaddy से है, GoDaddy में मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं टैग मैनेजर में, मुझे सिर्फ टैग चाहिए तो टैग मैनेजर में मुझे जाना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका है HTML टैग का,
وہ میں یہاں سے لوں گا. HTML ٹیگ کو یہاں میں نے کلک کیا ہے تو یہ ٹیگ میں نے یہاں سے لے لینے ہیں. یہ آپ کو جٹ کے طریقے سے بتا رہا ہوں. اس کو میں نے کاپی کر لیا. کاپی کر کے میں نے, اللہ آپ کا بھلا کرے, اپنی ویب سائٹ پر یہ اپیرنس میں گیا, تھیم میں گیا, تھیم کے ایڈیٹر میں گیا. ایڈیٹر میں جا کے میں نے اس کو ہیڈر میں پیسٹ کر دینا ہے, باڈی کے اوپر, ہیڈر ٹیگ سے پہلے, ہیڈر اینڈ ہیڈر ٹیگ سے پہلے. اس کو میں نے, یہ تھوڑا لمبا پروسیجر ہے مگر جو ویب ماسٹر ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو یہ میں نے آلریڈی کیا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں, میٹا نیم گوگل سائٹ ویریفیکیشن کا, ٹھیک ہے, یہ میں نے آلریڈی کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا ہیڈ ٹیگ جہاں ختم ہوتا ہے اس سے آپ نے پہلے اس کوڈ کو ڈال دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کو سیو کر لینا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, اس کو ہم نے سرچ انجن میں ڈال دیا. اس کو جب یہ ڈالنا ہے, اس کو ویریفائی کرنا ہے, وہ اس کو آپ کو ویریفائی کر دے گا. جب آپ کی سائٹ ویریفائی ہو جائے گی آپ کو یہ چیز ختم کر دینی ہے. اس کے بعد آپ نے آنا ہے گوگا ویب سائٹ ڈیٹا کے لیے انیلسٹ میں, انیلسن میں آنا ہے. وہاں سے آپ نے اپنی سائٹ کو ادھر ڈالنا ہے. جب آپ گوگل انیلسٹک میں آئیں گے تو آپ اس کو پہلے سرچ کر لیجیے گا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا. سرچ کرنے کے لیے انیلسٹک لکھیں, گوگل انیلسٹک میں چلے جائیں گے. آپ ادھر جب جائیں گے ادھر کلک کریں, گوگل جی میل اگر آپ اکاؤنٹ سے ہیں تو یہاں سائن ان ہو جائیں. سائن ان ہو کے جب آپ اس جگہ پر آئیں گے تو یہاں آپ نے سیٹنگ میں چلے جانا ہے. سیٹنگ میں جب آپ جائیں گے, یہ نیچے سیٹنگ کا بٹن بنا ہوا ہے, یہ پراپرٹی سیٹنگ. پراپرٹی سیٹنگ میں جب آپ کلیئر کریں گے, آپ کلک کریں گے تو یہاں ایڈ نیو پراپرٹی آپ کر سکتے ہیں. میں واپس جا رہا ہوں. یہاں یہ پراپرٹی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ نیا آپ کریٹ نیو پراپرٹی پر کلک کریں گے تو یہاں آپ اپنی ایک ویب سائٹ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں گے وہ آپ نئی ویب سائٹ یہاں ڈال کر, تو یہاں ویب سائٹ کا نام ادھر لکھ کر اس کو آپ نے یعنی کہ گیٹ ٹریکنگ کر دینا ہے. جب آپ ڈالیں گے یہ ٹریک کرنا شروع کر دے گی, آپ کا سارا ڈیٹا اٹھائے گی, کتنے یوزر آ گئے کتنے نہیں آئے. اس کے بعد یہ آپ نے 2 کام لازمی کرنے ہیں, یہ جن کا سیلف ہوسٹڈ ویب سائٹ یا بلاگ ہے. بلاگ سپاٹ کے لیے تو میں نے بتایا تھا آپ کو بہت آسان ہے, یہ اس کے لیے تھوڑا تو آپ کو مشکل ہے. اگر یہ آپ سے نہیں ہوگا تو کسی کو آپ کو کروانا پڑے گا. پرانے بندوں کے لیے میری طرف سے فری آفر ہے. جو پرانے ہمارے بلاگر ہیں ان کے لیے فری آفر ہے کہ میں ان کا یہ کام مفت میں کر دوں گا, مگر جو نئے ہیں ان کے لیے میں پیسے لوں گا. وہ بعد میں بتایا جائے گا, اینڈ پر میں آپ کو بتا دوں گا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایڈسن میں. اب ہم نے ایڈسن کا اکاؤنٹ بنانا ہے. اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہمیں لکھنا پڑے گا گوگل ایڈسن, google.com ایڈسنس. جب ہم, اگر آپ کو پورا ایڈریس یاد نہ ہو تو صرف ایڈسنس جب آپ لکھیں گے سرچ میں تو وہ خود بخود گوگل ایڈسنس کا آپ کو لنک دے دے گا, google.com ایڈسن, ٹھیک ہے. اس کو آپ کلک کریں گے تو اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے جس جگہ پر آپ کو جانا چاہیے. اگر آپ ای میل سے انٹر ہیں تو یہاں آپ سائن ان کیجئے گا, ٹھیک ہے. جب آپ سائن ان کریں گے, میں نے سائن ان پر کلک کیا, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ سے ای میل مانگے گا, ای میل مانگے گا, ای میل پہ نیکسٹ کریں گے. یہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا. پاسورڈ مانگ کر آپ کی اگر ویریفیکیشن کوڈ لگا ہوا ٹیلی فون والا یا دوسرا سیکیورٹی کوڈ لگا ہوا آپ سے مانگے گا تو آپ اس کے اندر انٹر ہو جائیں گے. جب آپ ایڈسنس کے اندر انٹر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو یہ ایڈسنس سے اندر انٹر ہونے کے بعد, انٹر ہونے سے پہلے یہ آپ کو ایک میل بھیجے گا کہ آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ ہم نے ویریفائی کر دیا ہے, یعنی کہ آپ کو اجازت ہے ایڈسنس اکاؤنٹ بنانے کی.
उसके बाद आप जब एडसेंस अकाउंट आपका मिल जाए, अब आराम से बन जाता है, पहले पाकिस्तानियों को नहीं बनता था, अब बड़े आराम से बन जाता है। जब एडसेंस अकाउंट आप बना लेंगे तो आप इस जगह पर आएंगे, गूगल एडसेंस अकाउंट में आप इस जगह पर आएंगे। इस जगह पर जब आप आएंगे तो सबसे नीचे लिखा हुआ है, आपने सेटिंग पर जाना है। सेटिंग अपनी मर्ज़ी की आपने कर लेनी है, जो करनी है, जो आपका नाम है, जो फ़ोन नंबर है, वो सारा कुछ करके आपने मुकम्मल ऊपर आ जाना है। अब आपने लेने हैं ऐड यूनिट, माई ऐड पर क्लिक करना है। माई ऐड पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे ऐड जो आपने कोड लेने हैं, मिसाल के तौर पर आपने नए ऐड का कोड लेना है, न्यू ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि आपने अपनी वेबसाइट के मुताबिक कौन सा बैनर चूज़ करना है। ये 728.90 है, 376.200 है, 320 है, 300 है, 600 है। लंबाई के रुख, चौड़ाई के रेख, छोटा। इसमें ऐड यूनिट भी हैं। ये टेक्स्ट और डिस्प्ले ऐड है, यानी कि इमेज भी आएगा। डिस्प्ले एड्स ओनली, इमेज आएगा। ये टेक्स्ट ऐड ओनली, यानी कि खाली टेक्स्ट आएंगे, लिंक बने हुए आएंगे। ये आपने खुद चूज़ करना है, जो चूज़ करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कस्टम चैनल देना कि इस चैनल पर मेरे ऐड नज़र आए, यानी कि ये चैनल आए, तो फिर ये यहाँ से भी आप दे सकते हैं। यहाँ से कोई सा ऐड आप बनाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं ऐड ये बनाता हूँ, ये वाला चकोर वाला बनाता हूँ, 360-220 वाला, ठीक है। मैं इसको बनाता हूँ। इस ऐड का मैं नाम पहले रखूँगा, वो नाम मुझे रखना पड़ेगा। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ रख देता हूँ नाजी 9, फ़र्ज़ करें इस ऐड का नाम मैंने नाजी 9 रख दिया, ठीक है। अब सबसे नीचे सेव एंड गेट कोड, मैंने इसको क्लिक किया, इसका नाम रखा, सेव एंड गेट कोड किया, वो मुझे कोड देगा, ठीक है। प्लीज़ वेट, ये मुझे कोड दिए हैं, मैंने इसको कॉपी, क्लिक करना है, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके इसको क्लोज करके अपनी वेबसाइट पर लगा लेना है। अब वेबसाइट पर जब लगाना है, वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट पर लगाने के लिए अगर तो सेल्फ होस्टेड आपका, ब्लॉग स्पॉट पे तो मैंने आपको बता दिया, कोई मसला नहीं है, वो खुद कोड देंगे, खुद आप उसके अंदर एंटर कर देंगे लेफ़्ट साइड पर। वो मैं आपको बताऊंगा और बाद में बताऊंगा। ये मैं वीडियो कंप्लीट कर लूँ क्योंकि ये ज़रूरी है सेल्फ होस्टेड वाली। उसके बाद आप एडिट थीम में आ जाएंगे। जो आपका थीम होगा, जो आपकी वेबसाइट का बैकएंड होगा, जो आपका टेम्पलेट बना होगा, उसमें आपने उधर अपने, अगर हेडर में आपने करने हैं तो फिर हेडर में आप इसको कर लें। अगर आप इसने किसी और जगह करने हैं, मेन इंडेक्स में करने हैं या सिंगल पोस्ट में करने हैं, फ़र्ज़ करें मैं सिंगल पोस्ट में करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टाइटल के नीचे आ जाए ये, तो मुझे पहले टाइटल ढूंढना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्ट के नीचे आ जाए, उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये कम अज़ कम 1.5 दिन 2 दिन लेगा ये शो होने में। क्यों शो होने में 1.5-2 दिन लेगा? ये आपकी वेबसाइट को पढ़ेगा कि आपकी वेबसाइट पर मवाद क्या है, उस मवाद की मुनासबत से ये आपके ऐड दिखाना शुरू करेगा। और जो सर्च वाले लोग आएंगे, जो किसी जगह का विज़िट करके आएंगे, उसकी मुनासबत से ये इश्तिहारात दिखाएगा। उस इश्तिहारात पर जो लोग क्लिक करेंगे उसकी आमदन आपको मिलेगी। आमदन कैसे मिलेगी? जैसे मैंने आपको बताया, इसको मैं क्लोज करूं। सेटिंग में आपने अपना नाम पता दिया हुआ है। जब आपके $50 हो जाएंगे, आपने एक लिमिट रखनी है $50 या $100 की, वो आपके एड्रेस पर या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए या चेक के ज़रिए आपको भेज दिए जाते हैं। तीसरी अहम बात, अब आपके जो सबसे बड़ी अहम बात है, आपके ब्लॉग पर, वेबसाइट पर यूज़र कम हैं, बहुत कम आते हैं, कईयों के इक्का दुक्का आते हैं, ख़ासकर ब्लॉग पर कईयों के नहीं आते। जो मेन चीज़ आपको बताने वाली है, उसमें आपको सख्त मेहनत की ज़रूरत होगी। मेहनत आपने कैसे करनी है? मेहनत आपने ये करनी है कि आपने दूसरी वेबसाइटों पर विज़िट करना है, दूसरे कोई ब्लॉगों पर विज़िट करना है, वहाँ कमेंट्स देने हैं, तबसरे करने हैं, वहाँ अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। लिंक ऐसे नहीं डालना कि लिंक डाल के भाग आए, नहीं, वहाँ तबसरा करना है बाकायदा तरीके से,
तबसरा करके अपनी ईमेल एड्रेस देना है, वेबसाइट का लिंक देना है। आपके जितने एक्सटर्नल लिंक होते चले जाएंगे, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक में इजाफा होता चला जाएगा। ये तो है एक मेहनत करने का तरीका, ठीक है। दूसरी मेहनत आपका कंटेंट, आपका जो मवाद है वो कितना बेहतरीन है जिस पर लोग टूट पड़ते हैं। आपका मवाद अच्छा होना चाहिए जिस पर लोग किसी भी मौजू पर हो, किसी भी मौजू पर हो, मौजू की कोई कैद नहीं है, मगर मवाद अच्छा होगा तो आपके यूज़र की ट्रैफिक में इजाफा होगा। नंबर 3, उसे एक्टिव रखिए। हर दूसरे दिन आपने कोई ना कोई पोस्ट करनी है, चाहे छोटी करनी है चाहे बड़ी करनी है, लाजमी करनी है। ये नहीं हफ्ता हफ्ता 15-15 दिन आपकी गैर एक्टिव पड़ी रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी ट्रैफिक में कमी होती चली जाएगी। अब यूज़र कैसे लाने हैं? ट्रैफिक आना और चीज़ है, यूज़र लाना और चीज़ है। ट्रैफिक है, आपकी वेबसाइट पर क्लिक हिट्स हो रहे हैं, हिट्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। 5000 हिट्स हो गए, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो हिट्स करते हैं और जेली हिट्स करके चाहे आप 50,000 रोज़ाना के हिट्स ले लें, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। आपकी यूनिक, आपके जो यूज़र हैं वो आने चाहिए आपके वेबसाइट पर। आपके, अगर मैंने पहले भी परसों भी लिखा था, फ़हीम असलम साहब ने कहा था 200 यूज़र तो बड़ी हंसी से, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। मगर मेरे नज़दीक अगर आपकी वेबसाइट पर रोज़ाना 200 से 250 यूज़र आते हैं तो आप 1.5 से 2 महीने में $100 बड़े आराम से कमा सकते हैं शुरू में। अब ये 200-300 यूज़र आएंगे कैसे? एक तो तरीका मैंने आपको बताया, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे के ब्लॉगों पर जाना पड़ेगा, वहाँ कमेंट्स करने पड़ेंगे, तबसरा करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट का एड्रेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक। एक ये मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी मेहनत, जो पहली मेहनत तो ये है, दूसरी मेहनत जो आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि सोशल मीडिया को यूज़ करना पड़ेगा। आपने अपना लिंक ट्विटर में देना है, फेसबुक में देना है, फेसबुक के ग्रुप्स में देना है, उस ग्रुप्स में जिसमें लोग तंग ना। आप अपना ब्लॉग लिखें या अपनी वेबसाइट लिखें, उसकी खबर या जो उसका जो मज़ामीन है या जो ब्लॉग है उसका लिंक दें, लोगों को तहरीक दें पढ़ने की, अपने दोस्तों को तहरीक दें पढ़ने की, आपकी वेबसाइट पर यूज़र आएंगे, ठीक है। एक तो इश्तिहारात पर खुद नहीं क्लिक करना और दोस्तों को भी नहीं कहना कि बार बार क्लिक करें। अगर कोई बार बार आपका दोस्त जानबूझ को आपका ब्लॉक करने के लिए क्लिक करता है तो गूगल उसकी आईपी को ब्लॉक कर देगा, आपके एडसेंस के जो अकाउंट है उसको ब्लॉक नहीं करेगा। उसको पता लग जाता है गूगल अब बहुत सियाना हो गया है। दूसरा तरीका मैंने आपको सोशल मीडिया वाला बताया है कि ट्विटर इस्तेमाल करें, फेसबुक इस्तेमाल करें और गूगल प्लस इस्तेमाल करें। उनमें आप अपना रोज़ाना की बेस पर अपना कोई ना कोई आर्टिकल का लिंक ज़रूर दें ताकि लोग उसको पढ़ें। ये 2 तरीके हो गए मुफ्त के यूज़र लाने के। बाकी कहते हैं लगाने वाले को मिलता है, लगाने वाले को वाकई बहुत मिलता है। $5 आप गूगल एडवर्ड में खर्च करते हैं तो आपको डेली के 80 से 90 यूज़र मिलेंगे जो हिट्स करेंगे और अच्छे यूज़र होंगे। अगर आप $5 फेसबुक पर इस्तेमाल करते हैं, आप पहले अपना फेसबुक पर पेज बनाइए, फिर आप प्रमोट कीजिए अपनी वेबसाइट को, तो कम से कम आपको 200 से 250 यूज़र डेली के मिलेंगे। ये मेरी आजमाई हुई बात है। $5 कितने हैं? ₹500। शुरू में आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर आपने अपनी वेबसाइट पर यूज़र लाने हैं तो, नहीं तो सख्त मेहनत की ज़रूरत है। लोगों की वेबसाइट पे जाइए, कमेंट्स कीजिए, तबसरा कीजिए, एक्सटर्नल लिंक अपना लिंक दीजिए, ये अपना टाइम ज़ाया कीजिए। अगर आप थोड़े से पैसे वाले हैं, पैसा खर्च करना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको मेरा ये मशवरा है, मैं जो करता हूँ, सीधी सी बात है, लगा कर कमाता हूँ। $5 दीजिए फेसबुक को, एडवर्ड को गूगल एडवर्ड को $5 दीजिए, डेली के हिट्स लीजिए। आप जनाब अगर खाली फेसबुक यूज़ करते हैं, गूगल एडवर्ड यूज़ करते हैं तो कोई वजह नहीं है। अच्छा, जो वो यूज़र आएंगे, आपका अगर मतन अच्छा होगा,
آپ کی سائٹ اچھی ہوگی، آپ کا بلاگ اچھا ہوگا، اس میں اچھی چیزیں ہوں گی، تو وہ یوزر آپ کا مستقل یوزر بنے گا۔ جب وہ یوزر آپ کا مستقل بنے گا، ظاہر سی بات ہے اچھے اچھے اشتہارات سامنے جب نظر آئیں گے، اس پر کلک بھی ہوں گے، جب کلک ہوں گے آپ کو پیسے بھی ملیں گے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جس چیز کی نہ سمجھ آئے دوبارہ بتائیے گا، دوبارہ ڈیٹیل سے میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔